Assalamu alaikum. Today we have 25th lecture for Business Finance MGT 232. We were studying about capital structure determination, and we'll be moving on to further more topics about arbitrage, and then we'll be moving on to taxes. In the last lecture we were studying about the introduction of the capital structure. Let's have a brief overview of our last lecture. That was about the capital structure. Capital structure basically involves the mix of your debt and financing. That is basically your long-term financing. So whenever we are talking about our long-term financing, that is your portion of your debt and the portion of your equity. What is the best mix of this debt and equity? What is percentage of debt and what is percentage of equity in overall long-term financing of the organization? We also studied that capital structure is affected by different cost of capital, required rate of returns on equity and debt, and also by the financial leverage. There were different approaches we studied in our last lecture. The first thing was the required rate of return on debt and equity. We found out that the required rate of return on debt is basically, we found it by B over the whole formula for your required rate of return is RI is equals to B over V. Then we also find out the required rate of return of equity, that is your earnings to the common shareholders whole divided by the market value of your the total market value of your the common shares. For debt, we looked at the market value of the debt and your annual interest payments, that is B. B is defined as your interest payments divided by your market value of the debt. And in case of your equity, we found out the required rate of return is your earnings over your market value of a stock, that is S. So RI is equals to, the formula was RI is equals to I, that is your annual interest payment, whole over BB is your market value of the debt. And we had RE, that is your required rate of return, and we found out that required rate of return on your equity is equal to your earnings, that is the earnings to your common shareholders or the net income to the common shareholders, whole divided by your S, that is your market rate of or the value of your common stock in the market value of your common stock to the shareholders. Then we had find out R naught, that is the net operating approach that defines your total capitalization rate. Your total capitalization rate was defined as your KI into B over V plus KE, और K कह सकते हैं, हम इसको R भी कह सकते हैं, that depends, क्योंकि आपका कहीं पे भी finance में if it is being used as R, it is being used as K, so both of them are considered as your required rate of return. So R into, we have S over V, and what is V? V is equals to B plus S, and we have O, that is I plus E. So your another thing that we found out that this is your total capitalization rate, and your total capitalization rate के अंदर आपकी V और O के, अब इसके अंदर net operating income से हमने एक चीज define की कि आपका required rate of return on your operating income would be O over V, where O is your income, your interest income plus your earnings, and interest expense plus your earnings, and V is your total overall market value of a firm or an organization. So this is also defined as R naught. R naught का हम further भी अगर उसको use करना चाहें तो एक further process भी आपका ये formula भी use होता है, जिसके अंदर we have V is equals to B plus S and O is equals to I plus E. तो हम इस तरीके से भी इसको use कर सकते हैं. Then we found out two different approaches to your capital structure. The first one was your net operating income. According to net operating income approach, the capital structure is defined as the weighted average cost of capital and your market value of a firm remains constant if we change our financial leverage. If there is a change in the financial leverage, for example, if we are focusing more on our debt financing, then and there is a change in the financial leverage or the capital structure of the firm, so it is said that there is no there will be no overall effect on the capital structure. That means your required rate of return on equity and your required rate of return on debt plus your value of a firm will remain the same. It will remain constant. There will be no change in those
values. And we also found out that through the graph as well, जिसके अंदर सिर्फ आपकी required rate of return on equity पे values में change आया था, जबकि आपका return on your operating income और your capitalization rate and your return on debt जो है वो constant रहा था, even changing your financial leverage भी. Then we found out the traditional approach. The traditional approach says that there exists an optimal capital structure, कि capital structure exist करता है, और वो जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड इस चीज पे करता है कि जितनी ज्यादा आपके फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू होगी उतना ज्यादा डिपेंड करेगी कंपनी ऑन द चीपर डेट फाइनेंसेस. तो चीपर डेट फाइनेंसिंग, जितना ज्यादा चेंज इन द फाइनेंशियल लिवरेज आएगा उतना ज्यादा देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट. तो वो जिस तरह फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होगी उस तरह आपकी बाकी चीजों के ऊपर भी अफेक्ट आएगा. बट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेगेटिवली अफेक्टेड. Your prices will be will have a negative effect of this change in. Then उसके बाद उसको समराइज करके हमने उसका ग्राफ भी देखा जिसके अंदर वैल्यूज जो है वो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग इनकम या कैपिटलाइजेशन रेट स्पेसिफिकली डिक्रीज हो रहा होता है एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग. सो एक सर्टेन लेवल आता है जिसपे मिनिमम वैल्यू ऑफ योर कैपिटलाइजेशन रेट होती है, जहां पे आपका कांस्टेंट होता है आपका डेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट, और वो जो वैल्यू होती है जिससे लीस्ट वैल्यू ऑफ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर वो सर्टेन अमाउंट, वो जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी दैट वाज कि जितना भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर कैपिटलाइजेशन, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन, दैट मींस योर टोटल कैपिटलाइजेशन रेट था, उसकी मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू जो होती है दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द ऑप्टिमल कैपिटल. वहां पे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जब आपके फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज डिक्रीज करने से जो लीस्ट वैल्यू ऑफ योर कैपिटलाइजेशन रेट आती है दैट इज योर optimal structure, capital structure of an organization. Well, that was about your last lecture. Let's move on to your next lecture. That is, it's the continuity of your last lecture. It's about again about capital structure or financial leverage and the relationship between both of them. There is a total value principle, just like two different approaches. There is another approach, or we can say there is a principle that is called total value principle, which is defined by Modigliani and Miller, M&M. इन दोनों ने सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटेल में डिफाइन करना शुरू किया था. अकॉर्डिंग टू देम दे एडवोकेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल लिवरेज एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्सप्लेन्ड बाय द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. दैट मींस दे से कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ कैपिटल कंप्लीट कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके लिए कांस्टेंट वैल्यूज रहती हैं आपकी कैपिटलाइजेशन रेट की. Now it also provides the behavioral justification for a constant R0 over the entire range of financial leverage possibilities. That means कि हमने अगर वो जो ग्राफ बनाया था, if you look at that graph, ये ग्राफ था, इधर हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज था, इधर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल था. जिस तरह हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करते हैं वो कहते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी डेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी तो इंक्रीज होता है. ये जो आपका आर नॉट है ये रिमेन्स कांस्टेंट. दे प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर दिस थिंग कि आपका अगर फाइनेंशियल लिवरेज पॉसिबिलिटीज, जितनी भी फाइनेंशियल लिवरेज पॉसिबिलिटीज हैं, कि जितना ज्यादा चेंज आएगा आपके डेट फाइनेंसिंग के ऊपर या जितना ज्यादा रिलायंस होगा उन डेट फाइनेंसिंग या लिवरेज में चेंज आएगा, तो फाइनेंशियल लिवरेज जिस तरह इंक्रीज होती है आपका कैपिटलाइजेशन रेट में कोई फर्क नहीं आता, इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो दे डिड प्रोवाइड अ बिहेवियरल जस्टिफिकेशन फॉर दैट एज वेल. उसके बाद वी हैव द टोटल रिस्क फॉर ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ द फर्म इज नॉट ऑल्टर्ड बाय दिस कैपिटल स्ट्रक्चर. दे डू से दैट द रिस्क, जो हमारा रिस्क इन्वॉल्व है इन बाय द शेयर होल्डर्स या आपके बॉन्ड होल्डर्स हो गए, जितने भी इक्विटी एंड बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, इट डज नॉट हैव एनी रिस्क एंड इट डज नॉट ऑल्टर बाय द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है तो उससे इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द रिस्क. तो रिस्क को कोई इफेक्ट नहीं करता. Therefore, the total value of the firm is not altered by the firm's financing mix. That means कि आप फर्म की कोई भी फाइनेंसिंग मिक्स बना लें, चाहे उसकी 40:60 कर लो, आप उसको 30:70 कर लो, 20:80 कर लो, ये फाइनेंशियल लिवरेज ये चेंज आ रहा है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर. इसके अंदर आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी चेंज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है. इनकेस आप इसको इंक्रीज करते हो फ्रॉम 50:50 या 60 डेट की पोर्शन और 40% आपका इक्विटी का अगर हो जाता है, इन दैट केस एज वेल इट इज डिफाइंड कि जो मर्जी फाइनेंसिंग मिक्स हो जाए, टोटल वैल्यू ऑफ अ फर्म इज नॉट अल्टर्ड. दो चीजें इन्होंने बताई. द फर्स्ट थिंग इज ये कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आता है उससे आपके रिस्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सेकंड थिंग ये कि आपके फाइनेंसिंग मिक्स जो भी हो जाए,
जिस तरह की भी फाइनेंसिंग मिक्स होगी उससे आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आता. दीज आर द टू थिंग्स विच आर बीइंग डिफाइंड क्लियरली by Modigliani and Miller. Now let's move on to the next slide. That is total value principle and Modigliani Miller को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है. If you look at your slide, you have two different pie charts. We have maroon and purple, light purple, dark purple color. The dark purple color in the right first, जो सबसे पहला आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है पाई चार्ट, that defines कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ डेथ इज ₹35 million. 35 million रुपीज है और आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 65 million. दैट मीन्स 35-60 की रेशियो है. But the total firm market value is $100 million क्योंकि वो 35 plus 65 करके that is 100 million रुपीज आपकी ओवरऑल वैल्यू है. तो आपके पाई चार्ट में अगर आप देखो तो हाफ ऑफ द 35 पोर्शन इज योर डेट और बाकी 65 आ गया. नाउ इफ यू मूव टू द राइट साइड पाई चार्ट तो इट डिफाइंस कि द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज ₹65 million एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 35 million. जो मैं आपको बता रही थी, अगर हम उसको फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज करें, बाय इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल लिवरेज एंड मोर रिलायंस ऑन द डेट, आपकी 65% आपकी जो है ओवरऑल फाइनेंसिंग के अंदर डेट से और 35% सिर्फ इक्विटी से. लेकिन टोटल फर्म मार्केट की जो मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो फिर भी 100 million ही रही है. इसके पाई चार्ट दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो डिफाइन किया हुआ है कि कितना पोर्शन डेट का कितना इक्विटी का, इसके अलावा ओवरऑल पाई चार्ट उतना ही रहा है. Now if you look at what Modigliani and Miller has said, they said that the total market value is not altered by the capital structure. The total size of the pies are the same. अगर आप दोनों पाई चार्ट के साइजेस को देखें तो वो इक्वल है. ठीक है, इक्वल साइजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि whether you take 35% of the debt or you take 65% of the debt. This is what they define. But उनकी कुछ assumptions थी. M&M assume an absence of taxes and market imperfections. उन्होंने कहा कि मार्केट में जो imperfection होती है, that means कि किसी एक चीज के इंक्रीज से दूसरी चीज में डिक्रीज हो जाए, या आपकी जो आपकी सेंसिटिव एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेंज इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी, या आपकी कोई और सर्टेन स्ट्राइक्स हो गई, कोई और नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, कुछ और इम्परफेक्शंस हैं. दोज इम्परफेक्शंस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट. दैट मींस दे डज नॉट एग्जिस्ट. उनकी अजम्पशन ये थी कि एक मार्केट इम्परफेक्शंस वहां एग्जिस्ट नहीं करती. सेकेंडली दे डिफाइन कि देयर आर नो टैक्सेस, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ टैक्सेस. ये दो अजम्पशंस उनकी थी. द थर्ड पॉइंट दे हैड was that investors can substitute personal for corporate financial leverage. वो ये कहते हैं कि लेट्स सपोज मैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, एज अ फाइनेंस CEO या कोई भी मैनेजर काम करूँ, या मैं ऑन अ प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई मेन एक मेजर हूँ. तो उसमें बजाय इसके कि मैं ये देखूँ कि मैंने इन्वेस्टर्स के अंदर कैन सब्सटीट्यूट पर्सनल फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल लिवरेज, अब मैं एज अ मैनेजर ये चीज नहीं कर सकती, एज अ CEO ये नहीं कर सकती, बट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज द शेयर होल्डर जो कि इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी है, वो क्या करेगा कि इन्वेस्टर कैन सब्सटीट्यूट पर्सनल फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल लिवरेज. दैट मीन्स कि वो क्या करेंगे कि अगर दे नीड सम मनी, ठीक है, तो डेट फाइनेंसिंग के या लोगों के ऊपर रिलायंस करने के बजाय या ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज करने के बजाय, कंपनी के नाम पे लोन लेने के बजाय वो अपने पर्सनल नाम पे लोन लेके दे विल इंजेक्ट दैट अमाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी एक असम्पशन उनकी है कि बजाय इसके कि कंपनी के नाम पे लोन लेने के, वो अपने पर्सनल नाम पे लोन लेके एंड दे इंजेक्ट दैट अमाउंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, now the next we have is the arbitrage and the total market value of the firm. हम क्योंकि हमारा फोकस इधर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर है, तो लेट्स सी कि आर्बिट्रेज क्या है और किस तरीके से वो डिफाइन करता है. Now let's suppose two firms that are alike in every aspect except their capital structure must have the same market value. ये कहा जाता है कि आपकी कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस आपने अज्यूम की, उन दो ऑर्गेनाइजेशंस में का सब कुछ सेम है एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. एक का 35-65 है और एक का 65-35 है. ये इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ उनका सेम है. तो दे से कि द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम मार्केट वैल्यू. ठीक है, द टू फर्म्स दैट आर लाइक इन एवरी एस्पेक्ट except their capital structure must have the same market value. That means कि अगर उन दोनों की जो मार्केट वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन अगर वो बाकी सब चीजों में एक जैसी है तो दैट मीन्स दे विल बी द सेम in case of their market value. Otherwise arbitrage is possible. Ab arbitrage is possible. Now what is arbitrage? Arbitrage is finding two assets that are essentially the same and buying the cheaper and selling the more expensive one. Now let's suppose इसमें arbitrage में क्या possible क्या, अगर let's suppose हम ये कह रहे हैं कि दो different organizations हैं, ठीक है, हमने एक कंपनी A, suppose करते हैं we have
company A and we have company B. कंपनी ए में ये डिफाइन किया जाता है कि इसका जो टोटल एसेट्स थे, इसका प्रॉफिटेबिलिटी थी इसकी, और शेयर होल्डर्स कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, इसकी डिविडेंड की वैल्यू, इसकी अर्निंग्स, नेट इनकम, ये सब चीजें आर द सेम एज वी हैव फॉर द टोटल एसेट्स ऑफ कंपनी बी. इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी शेयर होल्डर्स, इसका डिविडेंड अमाउंट, इसकी अर्निंग्स एंड नेट इनकम, ये सब कंपनी ए एंड कंपनी बी के सिमिलर है. अगर कंपनी ए एंड कंपनी बी के सब कुछ सिमिलर है एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह है? इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है 40:60, दैट मींस डेट रेशियो इक्विटी, एंड इसका है जी 60:40, दैट मींस डेट रेशियो इक्विटी. सो इसका 40:60 है, इसका 60:40 है. ना इसको डिफाइन करें, अगर आप अपना क्लियरली से डिफाइन इस चीज को करें तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस थिंग. हमने ये कहा कि दोनों की सब कुछ सेम है एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करें तो कहा यह जाता है कि अजम्पशन ये है कि इन दोनों की मार्केट वैल्यू सेम होगी. नाउ लेट्स सपोज इनकी मार्केट वैल्यू सेम नहीं निकलती, इवन दे हैव द सेम कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू अगर सेम नहीं निकलती तो क्या होगा? तो फिर वी हैव एन आर्बिट्रेज दैट इज पॉसिबल. अब आर्बिट्रेज क्या है कि मैंने दो ऐसे एसेट्स लिए जो कि सिमिलर थे, इनके स्टॉक्स लिए लेट्स सपोज, और मैंने इन्वेस्टर, आई एम इन्वेस्टिंग इन कंपनी ए एंड कंपनी बी. तो उसके अंदर मैंने क्या किया, फाइंडिंग टू एसेट्स दैट आर एसेंशियली सेम, एक जैसे हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, वो जो कि चीपर है, चीप वैल्यू वाला है, जो सस्ता हम मुझे मिल जाएगा, वो मैं सस्ता खरीद लूंगी. ठीक है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि उनकी मार्केट वैल्यू सेम नहीं है, दे डोंट हैव देयर मार्केट वैल्यू सेम, अगर सब कुछ सेम है लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दे डोंट हैव, पहले तो हमने कहा कि उनकी होनी चाहिए. लेट्स सपोज अगर नहीं है तो फिर आर्बिट्रेज होगा. अब आर्बिट्रेज किस तरह होगा कि इस दोनों में से कंपनी ए लेट्स सपोज हम कहते हैं कि थोड़ा सस्ता था, इसका जो स्टॉक था वो सस्ता था, तो मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन कंपनी ए, और मेरे पास अगर कंपनी बी का स्टॉक आ भी गया, या इफ आई डू हैव दैट स्टॉक, तो मैं वो जाके बेच दूंगी. तो I'll keep stock of company A with myself and I'll sell out the more expensive one, that is company stock B. तो stock A अगर सस्ता है और stock B जो है वो महंगा है, तो I am going to keep stock A with me and sell stock B that is an expensive one. And this is the whole process of finding out and then selling and buying or keeping the stock you have is called the arbitrage. Now let's have an example of an arbitrage. देखते हैं arbitrage approach की example for two different firms which are identical in every aspect except their capital structure. So now let's look at these examples. We have company NL and we have company L. If you look at company NL, it has a no financial leverage. That means they are not focusing on debt financing. उनकी कोई debt financing है नहीं. They have zero value of their debt financing. And if you look at the company L, it has rupees 30,000 as a portion of debt of 12% interest. 12% इंटरेस्ट है आपके डेट के ऊपर, 30,000 रुपीज डेट के ऊपर. तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट फॉर कंपनी एल इक्वल इट्स पावर वैल्यू. तो एल के लिए उसके मार्केट वैल्यू ऑफ डेट फॉर कंपनी एल इक्वल इट्स पावर वैल्यू. दैट मीन्स कि जितना ज्यादा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो भी है वो उसके एग्जैक्टली पावर वैल्यू के इक्वल है. दैट मीन्स 30,000 इज द सेम एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट. Now the required return on equity for company NL is 15% and for company L it is 16%. The net operating income for each firm is rupees 10,000. That is your income. Now let's have a valuation of company NL. Earnings available to the common shareholders for company NL. अभी हम NL कंपनी कंसिडर करें जिसमें फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है. सो अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स क्या है, E इज इक्वल्स टू 0 माइनस I. अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में ये चीज डिफाइन की थी कि हमारी ओवरऑल ऑपरेटिंग इनकम जो है दैट इज इक्वल टू द अर्निंग्स अवेलेबल टू योर कॉमन शेयर होल्डर्स. O इज इक्वल्स टू I प्लस E. इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हम पे करने वाले हैं दैट एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस योर ऑपरेटिंग इनकम प्लस योर इनकम दैट इज अवेलेबल टू योर शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर्स. तो कॉमन शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स प्लस योर इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने देखा था, उनको ऐड करके हमने फाइंड आउट किया था O. नाउ O इफ वी लुक एट दिस थिंग वी हैव O इज इक्वल्स टू E plus I. So that means E is equal, that implies that E is equals to O minus I, जिसके अंदर हमारी ऑपरेटिंग इनकम फॉर बोथ द कंपनीज इज 10,000 रुपीज. सो इट्स 10,000 रुपीज माइनस 0. क्यों? क्योंकि एनएल वो कंपनी है जिसमें नो लिवरेज है, नो फाइनेंशियल लिवरेज, देयर इज नो reliance on the debt financing. So the earning that is being given to your common shareholders is rupees 10,000. Now the market value of the equity, if we have to find out the market value of the equity, तो अगर आपको याद हो तो the formula for market value of the equity is required rate of return on equity is equals to
E over S. So when we have to find out S, that means S is equals to E over required rate of return on equity. So if we are using this formula and putting in the values, the earning is rupees 10,000. क्योंकि ये हमने ऊपर से फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द अर्निंग ऑफ अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, तो दैट इज 10,000 रुपीज. ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, ये वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे. होल डिवाइडेड बाय 0.15, दैट इज बीइंग डिफाइंड, कि हमने ये डिफाइन किया है कि 0.15 जो है 15% जो है दैट इज द इंटरेस्ट, दैट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है, वो हमें ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन के अंदर है. नाउ इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू, द 10,000 डिवाइडेड बाय 0.15 इज 66,667 रुपीज. That is the market value of your equity. Now we have to find out the total market value. अगर आप total market value इसकी देखें तो that is rupees 66,607 plus 0. क्यों? क्योंकि हमने ये define किया था कि market value किससे V is equals to B plus S, where S is the market value of your common stock and B is the market value of your debt. अगर हम ये देखें कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर नो फाइनेंशियल लिवरेज है, कंपनी NL, तो B की वैल्यू तो 0 हो गई, प्लस S की वैल्यू हमने यहाँ से S की वैल्यू पुट इन की, तो दैट इज 66,667. So 66,667 rupees is the total market value. Now if we look at the overall capitalization rate, हमने overall capitalization rate अगर आपको याद हो तो हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया था. Overall capitalization rate is equals to R naught is equals to K, या R कर ले, R I into B over V प्लस, जो अभी मैंने स्टार्ट में भी, इस लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको ये चीज समरी करते वक्त बताइए, इट इज S ओवर V, वेयर V इज योर मार्केट वैल्यू, B प्लस S इसको करते हैं हम, B प्लस S जो है वो आपकी मार्केट वैल्यू हो जाती है. नाउ लेट्स सपोज हमने इसके लिए देखते हैं, तो RI फॉर योर व्हाट इज दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर डेट. अब क्योंकि NL कंपनी के लिए डेट है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये तो हमारा सीधा हो गया 0. जाहिर बात है मार्केट वैल्यू भी उसकी कोई नहीं है, तो ये आपकी आती है 667. ओवरऑल टोटल मार्केट वैल्यू यहाँ से आई है, प्लस योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 15%, तो दैट वुड बी 0.15. एस की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 66,667. होल ओवर हमने फाइंड आउट किया मार्केट वैल्यू जो V है, टोटल मार्केट वैल्यू वो भी 66,667 है, तो ये तो 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0 plus 0.15 into 1, that is equal to 15%. So this is how this 15% is being found out, कि आपके overall capitalization rate क्या है 15%. हमने find out किया है कि with required rate of return on debt and plus required rate of return on equity is equal to your overall capitalization rate. अच्छा, इसका debt to equity ratio 0 है, क्यों? क्योंकि ये the value of your debt is 0 और इक्विटी की वैल्यू आपकी ओवरऑल 10,000 है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 0. सो ये आपके आंसर आ जाता है फॉर कंपनी NL. ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि हमने कहा कि दो कंपनीज है, कंपनी NL एंड कंपनी L. नाउ मूविंग ऑन टू कंपनी L, द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी L को अगर हम देखें और अब हमने इसका कैपिटलाइजेशन रेट एंड टोटल मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए जरूरी है पहले हमारे पास अर्निंग्स एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो, जो कि गिवन नहीं है. Now earnings available to your common shareholders, हमने again वही तरीका करना है कि we have the formula O is equals to E plus I, तो उसकी जगह हम E is equals to 0 minus I हो जाएगा, जिसके अंदर the value of your operating income for company L is 10,000 rupees minus rupees 3,600 is the amount of interest you are going to pay. अगर आप अपनी ये पिछली स्लाइड से देखें, the amount of debt we had was 30,000 और उसका 12% फाइंड आउट करें, तो we'll have this value. So ये जो ये वैल्यू आई है, ये आई है जी 30,000 into 0.12, तो 30,000 का 12% इज 3,600. वो वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू पे. तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन L, तो L ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी 3,600 और आपकी ओरिजिनल ऑपरेटिंग इनकम है 10,000, तो माइनस करें तो द रिमेनिंग अमाउंट टू ऑफ अर्निंग्स जो रिमेनिंग रह जाती है, दैट इज 6,400 रुपीज. Now moving on to your market value of equity, तो market value of equity is again required rate of return of equity is equals to E over S. तो if we cross multiply, तो S is equals to E over RE.
अब इसके अंदर हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज गिवन एज 16% एंड योर अर्निंग्स इज 6,400. If you divide 6,400 by 16%, the answer you get is 40,000 rupees. Now we have the next thing is the total market value. That is, अब हमने total market value कैसे find out करते हैं? V is equals to S plus B. Now S is the market value of your stock, common stock, and B is your market value of the debt. तो आप S जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक दी हुई है, दैट इज 40,000, और आपको बताया कि आपकी डेट की अमाउंट कितनी है, दैट इज 30,000, और उसमें लिखा हुआ था क्लियरली द मार्केट वैल्यू ऑफ योर डेट इज द पार वैल्यू. The market value of your debt is the par value of your debt. तो that means कि जितना debt given है उतना ही उसकी market value है. तो वो 30,000 rupees लग गया, और 40,000 था आपका, हमने भी find out किया market value of the equity. So if we total it, sum it up, the value we get is rupees 70,000. That is the total market value. Now moving on to the overall capitalization rate. तो हम capitalization rate अगर find out करें तो again the formula is R naught is equals to RI into B over V plus R E into S over V. अब इसके अंदर if we put in the values within this formula for your overall capitalization rate, so that would be हमें पता है कि 12% हमारा rate है debt का. B over V, that is your 30,000 divided by 70,000 plus return required rate of return on equity, वो कितना है हमारा, that is 16% into your market value of stock, that is 40,000 whole over the total value of a market is the total market value is 70,000. इसको अगर हम overall define करें तो the answer would be 4.3%. So ये हमारा आंसर आता है 14.3% for your total overall capitalization rate. If you find out the debt to equity ratio, तो हमारा debt की amount कितनी है, that is 30,000, और आपकी इक्विटी की अमाउंट है 70,000. इक्विटी टोटल इक्विटी इज 40,000. The answer would be 0.75. So or 75%. 0.75 times या percentage में that is 75%. Now if we look at the completing an arbitrage transaction, इसको पूरा whole over complete कैसे करते हैं? The first thing that we have to compare to different companies. वो ऐसी companies जो कि सब कुछ they are similar in every manner except their capital structure. तो हमने वो define किया क्योंकि कुछ capital structure में difference था, एक के अंदर no debt financing थी, एक के अंदर proper debt financing थी. So if we compare both of them, then how what is the difference in the value of a firm? So अगर हम इनकी total capitalization ratio देखें तो एक की capitalization ratio is 15% and another one has a capitalization ratio of 14.3%. That means the company with no leverage ratio has a more capitalization rate and has more market value of 70,000 rupees, while the one which has a less value of market capitalization, that is 66,667 and total market value, and the company L has a greater market value, that is 70,000 rupees, but its total capitalization rate is less. Now if we look at another assumption, that is assume you own 1% of the stock of company L. Company L का 1% stock you करना है, that equity value is rupees 400. That means कि 400 rupees का वो हमारे पास stock है. Now you should sell the stock in company L for rupees 400. हमने वो stock था हमारे पास 400 का, हमने वो बेचा, 400 rupees हमारे पास आ गए. Now borrow rupees 300 at 12%. अब हमारी assumptions है. Second assumption is कि borrow rupees 300 at 12% interest. That means equal 1% of debt for कंपनी एल, क्योंकि हमने कंपनी एल का डेट भी 12% है, और 300 वी आर गोइंग टू बोरो 300. तो इफ वी फाइंड आउट 30,000 into 10%, that will be equal to rupees 300. So that is 1% of your overall debt. So it's 300 is 1% of your debt for company L. Now what we have borrowed, we are going to borrow rupees 300 at 12% interest rate, क्योंकि हमारा जो debt interest था, required rate of return on debt था for company L, that was 12%. Now let's buy 1% of the stock in company NL. यही पैसे हम company NL में, क्योंकि हमने company वो company जिसकी value 400 stock था company L, वो हमने
बेच दिया और हमने नेक्स्ट कौन सा खरीदा है, दैट इज एनएल कंपनी, दूसरी कंपनी जो कि जिसका लिवरेज नहीं था, दैट कंपनी फॉर ₹666.67, ये इसके स्टॉक की वैल्यू 1%। कैसे ये हमने निकाली कि हमारी ओवरऑल वैल्यू फॉर स्टॉक वाज दिस 0.67, तो मल्टीप्लाई बाय 10% या 1%, इसका फाइंड आउट करें 0.01, that will be equal to 6,666.67। ठीक है, ये अब हमने वैल्यू फाइंड आउट की, हमने इसका 1% स्टॉक खरीदा। नाउ दिस लीव्स यू ₹33.33 फॉर अनदर इन्वेस्टमेंट। कैसे, हमने ₹400 हमारे पास थे, 300 का हमने लोन लिया। अब 400 प्लस 300 हमारे पास टोटल ये जो वैल्यू आई है, दैट इज द टोटल अमाउंट वी हैव, टोटल वी हैव minus our expense on buying a stock. So we have the total value we have is ₹400 plus 300, that is ₹700, और हमने 6,666.67 का हमने खरीदे हैं स्टॉक, उसको माइनस किया तो the remaining amount we have is this 33.33 is your remaining. Now let's move to the next tab, that is original return on your investment in company L. अब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, देखिए 400 इंटू 16%, 400 का 16% फाइंड आउट करें, दैट इज ₹64। क्यों, क्योंकि हमने पहले जितनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ ₹400 की थी, हम उस पर कितना 16% रिटर्न ले रहे थे, तो हमने ₹64 लिए, ₹64 हमें रिटर्न मिल रहा था। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर द ट्रांजेक्शन, क्यों हमने क्या कहा है कि आर्बिट्रेज क्या है, दो ऐसी सिमिलर कंपनी जो कि सब कुछ उनके अंदर सिमिलर हो लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू चेंज हो। इफ वी लुक एट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ, अगर ये पीछे जाए तो द टोटल मार्केट वैल्यू फॉर कंपनी एल इज 70,000 एंड टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एनएल इज 66,667। अब आप ये देखें कि वो कंपनी जिसका स्टॉक वैल्यू 70, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 70,000 है, एक की 66,667 है। हमने ये कहा कि आर्बिट्रेज में यही होता है कि जब दोनों सब एस्पेक्ट में सेम होते हैं एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, तो दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंस था, तो हम उन दोनों को कहते हैं कि उनकी मार्केट वैल्यू सेम हो। लेट्स सपोज अगर उनकी मार्केट वैल्यू सेम नहीं है तो फिर आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करेगा, और आर्बिट्रेज के केस में हम ये करते हैं, वी बाय द चीप वन एंड वी सेल द एक्सपेंसिव वन। जो महंगा होता है उसको बेच देते हैं, जो सस्ता होता है वो खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे हमने यही किया कि ₹400 का हमने देखा कि ₹400 के हमारे पास ऑलरेडी कंपनी एल का स्टॉक था, उसको हमने बेचा, उस पर हमें रिटर्न 64 मिल रहा था। नाउ लुक एट दिस थिंग कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर द ट्रांजैक्शन वी हैव 666.67 इनटू 16% इज इक्वल्स टू ₹100 रिटर्न ऑन एनएल। यही 16% जो हमें 16% रिटर्न आ रहा था ना ओवरऑल, तो हम 16% रिटर्न अगर ये 6,666 के ऊपर करें तो दैट इज ₹100। इसका मतलब है दूसरी ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे पास ज्यादा रिटर्न आ रहा है। नाउ ₹300 इंटू 12%, ये हमने अब इसमें से इंटरेस्ट पे करना है, तो 300 का 12% फाइंड आउट किया, that is 36, तो that interest paid. Now the amount remaining is ₹64 net return. तो 100 में से 36 माइनस किया एंड 33.33 लेफ्ट ओवर भी ऐड किया, तो the total amount we have is ₹366.67। अब वो कैसे कि हमारे पास कितना रिटर्न, नेट रिटर्न किस तरह आया कि हमने 100 में से 36 माइनस कर दिया, तो वो हमने इंटरेस्ट पे किया था। द रिमेनिंग अमाउंट वी हैव इज ₹64 एंड 33.33 जो कि पिछले हमारा लेफ्ट आउट आफ्टर बाइंग द स्टॉक। सो 33.33, 64 हमारी अमाउंट थी, 64 प्लस 33, दिस रिड्यूसेस द रिक्वायर्ड नेट इन्वेस्टमेंट टू ₹366.67 टू अर्न ₹64। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी 64 अर्न करने के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे टू 366.67, क्योंकि हमने दिस 33.33 प्लस 64 दोनों को ऐड कर लिया है और हमारे पास अमाउंट आई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू
summary of this arbitrage transaction, the investor uses, अब इसमें जो हमारी कुछ assumptions थी, the first assumption हमारी यही थी कि एक तो हम less वाला खरीदते हैं और दूसरा वाला बेच देते हैं. अगर हम ये देखें, और दूसरा assumption ये था कि investor जो है वो personal loan ले लेते हैं, except instead of going for increasing their financial leverage, the investor uses the personal rather than corporate financial leverage. तो कंपनी के नाम पे लोन लेने के बजाय they take their own loan and inject that amount into company as an investment. The equity share price in company NL rises based on the increased share demand. तो वो जो equity share price कंपनी के SNL की प्राइस कंपनी NL की वैल्यू जो है वो उसी तरह इंक्रीज होगी when उसका डिमांड जिस तरह इंक्रीज होगा, उसकी शेयर प्राइस जिस तरह इंक्रीज होगी. The equity share price in company L falls based on the selling pressure. जो जितना ज्यादा क्यों देखें, वो जो कि एक्सपेंसिव था उसको हमने बेचना शुरू कर दिया जो कि कंपनी एल थी, और वो जो कि सस्ता था जो कि कंपनी एनएल थी उसको हमने खरीदना शुरू कर दिया. तो कंपनी एल क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू कम थी, हमने उसके खरीदना शुरू किया, तो जितने ज्यादा उसके साथ लोग खरीदना शुरू करेंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइस इंक्रीज होगी. सिमिलरली वो कंपनी जो कि कंपनी एल है उसका स्टॉक अगर हम देखें तो वो स्टॉक जो है वो लोगों, क्योंकि उसमें उसकी वैल्यू वो एक्सपेंसिव था, वो बेचना शुरू कर दिया. जब उसको बेचना शुरू कर दिया तो देयर इज अ सेलिंग प्रेशर, तो वो सेलिंग जितना ज्यादा लोग बेचेंगे उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी. So arbitrage continues until total firm values are identical for the companies NLL. और तब तक आप ये transactions करते रहते हो, खरीदना बेचना until unless the value of both the firms are equal. So therefore all capital structures are equally as acceptable. वो ये कह रहे हैं कि चाहे वो whether you have the capital structure of 40 60 30 70 20 80 or you have this 33 66 इस तरह का कोई आपके इवन है, तब भी आपकी जो वैल्यूज हैं ते ऑटोमेटिकली आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो दे ऑल आर इक्वल एज एक्सेप्टेबल. तो वो हर किस्म का भी एक्सेप्टेबल होगा इफ वी गो ऑन विद द आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शंस. नाउ दैट वाज ऑल अबाउट योर आर्बिट्रेज. लेट्स लुक एट सम ऑफ द मार्केट इम्परफेक्शंस जिनको हम पिछले आर्बिट्रेज में की अजम्पशन में, आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम की अजम्पशन में, आपकी सिंपल ट्रेडिशनल अप्रोच में, इन सब में हम अज्यूम ये करते रहे कि देयर आर नो मार्केट इम्परफेक्शंस. नाउ लेट्स लुक एट these things. What are the market imperfections? The first market imperfection is your bankruptcy cost. That means कि let's suppose if the company got bankrupt, तो आपकी bankruptcy के अंदर किस तरह से bankruptcy होगी तो फिर क्या होगा. अब bankruptcy के अंदर we have different things. We have an agency cost, we have debt and the incentive to manage efficiently, we have institutional restrictions and we have transaction cost. Let's look at each of them separately. We have agency cost. अब agency cost आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें हम लोगों ने agency cost को define किया था. So let's look at it again. Cost associated with monitoring the management to ensure that they behave in ways consistent with the firm's contractual agreements with creditors and shareholders. ये देखा जाता है कि वो cost associated in monitoring and monitoring management, that means कि उनको manage और monitor करने के लिए ऊपर जो cost आती है हमारी for managing the management, जो कि हम ये इंश्योर करें, जो कि हमें ये मॉनिटरिंग जो हमें इंश्योर करे कि हमारे गोल, कंपनी की गोल और उस सर्टन लेवल एम्प्लॉय के गोल भी इक्वल है. तो उस पे जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज एजेंसी कॉस्ट, और द इंसेंटिव्स और द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दैट आर बीइंग गिवन टू मैनेज योर एम्प्लॉयज इज नोन एज योर एजेंसी कॉस्ट. नाउ मॉनिटरिंग इंक्लूड्स, मॉनिटरिंग में क्या क्या आ जाता है दिस एजेंसी कॉस्ट. मॉनिटरिंग इंक्लूड्स बॉन्डिंग ऑफ एजेंट्स, ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके एजेंट्स को आपस में मिलाया जाता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है, एंड एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टिंग द मैनेजमेंट डिसीजंस और एक्शंस. अब ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट के डिसीजंस और एक्शंस नहीं होंगे, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन योर शेयर होल्डर और द ओनर ऑफ द कंपनी. नाउ कॉस्ट आर बोर्न बाय शेयर होल्डर्स, दैट इज जेंसन एंड मैकलिन. अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने पहले भी जेंसन एंड मैकलिन स्टॉक वैल्यूएशन में पढ़ा था कि जेंसन एंड मैकलिन अपना एक पूरा दिया था एक मॉडल. तो अगर उसमें हम देखें तो कॉस्ट आर बोर्न बाय द शेयर होल्डर्स. इट इज सेड दैट जेंसन एंड मैकलिन डिफाइन दिस एजेंसी कॉस्ट, जिसके अंदर उसने ये चीज बताई थी कि कॉस्ट आर ऑल बोर्न बाय योर शेयर होल्डर्स. नाउ मॉनिटरिंग कॉस्ट लाइक बैंक्रप्सी कॉस्ट टेंड टू राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट विद फाइनेंशियल लिवरेज. तो जितना ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज आप करते जाते हो बैंक्रप्सी कॉस्ट इंक्रीज. क्यों? क्योंकि इसका मतलब है फाइनेंशियल लिवरेज पे आप रिलाई करो, दैट मींस यू आर रिलाइंग मोर ऑन योर डेट फाइनेंसिंग. जितनी ज्यादा डेट फाइनेंसिंग ज्यादा होती जाएगी उतने ज्यादा चांसेस ऑफ योर बैंक्रप्सी हो जाएंगे.
Now let's have an example of the effects of corporate taxes. अब क्योंकि हमने एक चीज corporate taxes को भी देखना है, the judicious use of financial leverage provides a favorable impact on a company's total valuation. हमने कहा जब अपनी traditional approach थी उसमें हमने यही कहा कि we use a traditionally we use the financial leverage in order to provide a favorable impact on the company's total valuation. Now consider two identical firms except अब दो आइडेंटिकल फर्म्स है एक्सेप्ट उनकी ये चीजें नहीं मिलती. एक कंपनी है एनडी विद नो डेट एंड 16% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. कंपनी डी इट हैज ₹5,000 डेट ऑफ 12% डेट. Now corporate tax rate is 40% for each company and your NOI for each firm is ₹10,000. Now if you look at the example for company and D, the earnings available to your common shareholders is again earning is equals to operating income minus your interest expense, that is 2,000 minus your 0 क्योंकि इसमें interest 0 है क्योंकि आप लोन ही नहीं लिया हुआ, so the amount would be 0. ₹2,000 is remained as an earnings. Now if you look at the tax rate that is 40%, so income available to your common shareholders क्या हो जाएगी? Income available to your common shareholders into 1 minus tax, that means उसमें से tax separate होगा. तो the income minus your tax is the net income after tax is the amount that is being given to your shareholders. तो इसमें से हम tax के amount minus करेंगे 40%, the answer we get is 1,200. The total income available to all security holders is earning after tax plus your interest income. जो interest payments हमने receive किए वो तो 0 है क्योंकि इसका कोई debt नहीं है. 1,200 is the amount that is being available to your common shareholders. Now let's look at the company D. We have the valuation of company D where we have some debt. So earnings available to your common shareholders is E is equals to 0 O minus I. इसमें हमारे interest expense है जिसमें हमने कहा है कि 12% interest expense है on certain loan. तो हम अगर इधर loan की amount देखें तो that is 5,000 का 12%. So if we find out this is 5,000 into 0.12, that is ₹600, and the remaining amount of earning we have is 1,400 that is being given to your shareholders. 40% tax है, इस income के ऊपर tax लगाया जाए तो the remaining amount we have is 8,840. Total income available to all shareholders, क्योंकि हमें पता है कि total income हमने ये define की है कि total income is equals to earning plus your interest. तो earning after tax कितनी है 840 plus ₹600 आपका लोन है. The amount is 1,440. Now ₹240 annual tax shield benefit of debt, that means कि 1,140 में से हम 1,200 जो कि tax एज टैक्स पिछले उसमें हमने पे करना है तो वो अगर माइनस कर दिया जाए तो द रिमेनिंग अमाउंट वी हैव इज 240, दैट इज द टैक्स शील्ड. तो टैक्स शील्ड बेनिफिट देख लेते हैं कि पहले टैक्स शील्ड होती क्या है. नाउ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, ये वो इनकम है जिसके ऊपर आपका टैक्स कट सकता है. The expense protects or shields an equivalent dollar amount of revenue from being taxed by reducing the taxable income. अब क्या होता है इसमें, इसीलिए हम कहते हैं कि वाइफो, लाइफो, फाइफो, लाइफो और एवरेज और जस्ट इन टाइम इस तरह की जितनी भी हमारी यूज की जाती हैं, जिस भी तरीके से हम लोग यूज करते हैं अपने सारी इनकम को या अपनी स्टेटमेंट्स को बताने के लिए, तो उसमें कोशिश ये होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि कम से कम अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया जाए. अब कम से कम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी नेट इनकम की वैल्यू भी कम हो. नेट इनकम 10,000 है उसका 12% ज्यादा होगा और नेट इनकम 12,000 है उसका 12% उससे भी ज्यादा होगा. तो जितनी कम इनकम होगी उतनी कम परसेंटेज ऑफ टैक्स निकलेगी, उतना कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी ओरिजिनल नहीं बताती, दे डू टेम्पर्ड सम ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दे शो देयर नेट इनकम एज to pay less tax. So that is in the form of tax shield. Now if you look at the present value of tax shield benefits of debt, that is किस तरह से हम उसकी present value find out कर सकते हैं. R, that is the required rate of return, into B, that is the amount of expense, interest expense, या आप कह सकते हो value of a firm, value of market value of debt into your tax rate whole divided by R is equals to. अब इसमें अगर आप ये देखो तो your R cancelled out with R, the answer we have is B into TC. That TC is your tax rate. So now 5,000 is your amount of loan, market value of your loan, and 0.4 or 40% is your tax. So the amount we get is ₹2,000. Now this is the present value of tax shield benefits of debt. Now if you look at this static, एक static है तो इस static के amount अगर आप देखें तो this shows
that permanent debt so treated as a perpetuity कि हम ये कंसिडर करते हैं कि forever होगा. Alternatively, rupees 240 annual tax shield whole divided by 0.12 that is 12% is equals to 2000. That means वो भी अगर आप देख लो तो आपने जो 240 का सेविंग की थी उसके ऊपर भी अगर 12% उसको से डिवाइड किया जाए जो कि डेट की अमाउंट थी तो then we again get 2000 where rupees 240 is equals to rupees 600 interest expense into 40 tax rate. तो that is इसका मतलब है कि आपकी rupees 240 का एनुअल टैक्स शील्ड हुआ था 240 रुपीज का टैक्स शील्ड है उसको डिवाइड करें अगर हम अपनी डेट के ऊपर से इंटरेस्ट एक्सपेंस से तो द अमाउंट वी गेट इज 2000. इसका मतलब है कि दिस 240 इज आल्सो इक्वल टू 100 इंटरेस्ट एक्सपेंस इनटू 40 टैक्स रेट. Now let's look at the summary of the corporate tax effects. Now the greater the amount of debt, the greater the tax shield benefits and the greater the value of the firm. अब क्यों? क्योंकि देखिए net income मैंने ली है, मेरे पास आया operating income after expenses, ठीक है, earning before interest and taxes. तो इस interest and taxes में मैं जितना ज़्यादा interest expense pay करूँगी उतनी कम value होएगी. Now let's look at this thing that we have company A and we have company B. ऑपरेटिंग इनकम इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी ऑपरेटिंग इनकम 100 है, इसकी भी ऑपरेटिंग इनकम 100 है. इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 40, इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 60. इस 40 को हमने जब माइनस किया तो द अमाउंट वी गेट इज 60 फॉर दैट इज योर नेट इनकम बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स कर दें और इस पे हमारी अमाउंट रहेगी 40. सो इस पे अगर हम टैक्स लगाएं तो टैक्स लगाने के बाद लेट्स सपोज इसका 10% टैक्स है तो 10% टैक्स लगाने के बाद we are remaining with 60 minus 6 is 54 and 40 minus 4 is 36. ठीक है, द अमाउंट ऑफ इनकम इज लेस. लेकिन अगर आप इस चीज को ये देखें कि हम टैक्स कितना पे करें क्योंकि वो एक्सपेंस होता है और ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस ही होता है कि इंटरेस्ट हमारा टैक्स कम से कम पे हो, तो हम यहाँ पे ग्रेटर टैक्स दे रहे हैं और यहाँ पे लेस टैक्स दे रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर टुवर्ड्स दिस थिंग कि जितनी कम इनकम शो करेंगे उतना कम डेट पे किया करना पड़ेगा. सो द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डेट द ग्रेटर द टैक्स शील्ड बेनिफिट. Now the greater the financial leverage, the lower the cost of capital of the firm. So the greater क्या है कि जितना ज्यादा financial leverage होगी उतनी cost of capital जो है वो कम होगी. The adjusted M&M proposition suggests an optimal strategy is to tear on the maximum amount of financial, जितना ज्यादा financial leverage लिया जा सकता है लिया जाए. This implies a capital structure of almost 100% debt. वो ये कहता है कि 100% debt तो फिर तो हम leverage ही लेते जाए, ज्यादा से ज्यादा rely करें leverage के ऊपर. Yet this is not consistent with the actual behavior. Actual में ऐसा नहीं होता. We don't go for taxes only. Now let's look at other tax issues. We have uncertainty of tax shield benefit. For example, uncertainty increases the possibility of bankruptcy and liquidation, which reduces the value of tax. जब हमें नहीं पता कि कितना % टैक्स चलो हमने पे करना है, कितनी इनकम आएगी, फोरकास्ट करने के बाद ही हम वैल्यू करते हैं, पर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती. So it does have an uncertainty of whether we are going to get that benefit or not. Then we have corporate plus personal taxes आ जाते हैं. Personal tax reduce the corporate tax advantage associated with the debt. Only a small portion of the explanation why corporate debt use is not near 100%. So personal tax reduces the corporate tax advantage associated with it. कि अगर आपने corporate tax पे किया उसके बाद आप personal पे भी पे करें तो automatically your reduce कर देता overall amount. The last topic of this chapter is your financial signaling. The financial signaling is a manager may use capital structure changes to convey information about the profitability and risk of the firm. Now this is very important. Now looking at all these things, looking at the financial leverage and the capital structure, this is very important to consider the profitability and risk of the firm. So a manager may use capital structure changes to convey information about the profitability and the risk of the firm. Capital structure में जो भी changes आ रहे हैं उससे आपकी profitability और आपकी risk of a firm के ऊपर क्या effect आ रहा है. Then informational asymmetry. Now informational asymmetry का मतलब क्या होता है? Information asymmetry का मतलब होता है there is an imbalance of information available in the market. That means कि वो information जो कि available in the market directly है और वो information जो कि एक मेरे पास मैं as an investor मेरे पास शायद बहुत ज़्यादा information है, लेकिन वो जो investor जो कि नया investor उसके पास information नहीं है. कंपनी में वो बंदा जो कि सेल आउट कर रहा है अपने सारे शेयर्स, दैट पर्सन हैज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड 100% राइट इंफॉर्मेशन, बट द पर्सन हु इज परचेजिंग दोज एसेट और परचेजिंग दोज स्टॉक डज नॉट हैव एन एग्जैक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन.
तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो लोग हैं जो कि खरीदना चाह रहे हैं, वो जो बेचना चाह रहे हैं उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। दिस क्रिएट्स एन इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कि आधों के पास क्लियर और आधों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। सो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इनसाइड मैनेजर्स नो समथिंग अबाउट द फर्म दैट आउटसाइडर्स डू नॉट। तो वो कहा यह जाता है कि आपके मैनेजर्स के पास एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट होती है कि क्योंकि मैनेजर्स विद इन द कंपनी काम कर रहे होते हैं, सो दे हैव more information and they are more into they do have an idea of the inside of the organization, while your security holders are concerned with the profit only, with what the investment they have made, and they do not are participating into the matters of the manager very interested except the board of directors. So changing the capital structure to include more debt conveys that the firm's stock price is undervalued. So आप ये करो कि बार बार अपने capital structure को change करो कि ताकि उस पर debt include करते रहो, that shows कि firm's stock price is undervalued. Now that is a big valid signal because of the possibility of bankruptcy, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है कि confirms the firm's stock price is undervalued, अब जब भी stock price undervalued होगा, that is the valid signal कि possibility of bankruptcy exist करती है. Companies should have to look at its profits and risk. Now let's summarize the whole chapter. जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने capital structure को पढ़ा है, then we found out the required rate of return on equity, required rate of return on debt, and then we found out the operating income. Plus we also found out that what is the total capitalization rate. Then we look at the two different approaches, that is net operating income approach and your traditional approach, keeping in view the financial leverage and the capital structure and their relationship. Then we found out that there is a the total value principle for Modigliani and Miller, जिनके अपने point of view से ये है कि companies, if the companies are same and they do have their टोटल मार्केट वैल्यू इक्वल होती है, और प्लस उनका ये कहना है कि फाइनेंशियल लिवरेज जो है उसके इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. व्हाटएवर कैपिटल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन हैज, द ओवरऑल टोटल वैल्यू ऑफ अ फर्म इज नॉट गेट अफेक्टेड by this capital structure, and there are some assumption. Now let's suppose if two companies are similar in all the aspects and there is just one difference of capital structure. Now इस केस में हम क्या करेंगे कि या तो ये इस तरीके से हो कि वो दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, कि आपकी दोनों जो भी चेंजेस हैं उनको भी इग्नोर करके कंसिडर किया जाए कि द कंपनीज आर on the same path. Now दूसरा ऑप्शन ये है कि कहा यह जाता है कि if you have your total capital if the firm is similar in all the aspects, it will have the same value of a firm. Now if it does not have a same value of a firm, then we can say that there is an existence of arbitrage, or there is a possibility of arbitrage. Now arbitrage में क्या है कि दो similar firms होती हैं, they are equal until लेकिन अगर वो नहीं, उनकी value of a firm equal नहीं है, तो they can exist arbitrage, जिसके अंदर हमारी assumption ये है कि आप जब जितने भी आपके investors होते हैं वो एक personal financial leverage increase करके inject करते हैं corporate में instead of increasing the corporation's financial leverage. Then they also फोकस ऑन दिस थिंग कि जितने अगर दो कंपनीज उनको दो एसेट्स को कंपनीज को कंपेयर करें तो उसमें से लेस वाले को खरीद लिया जाए और एक्सपेंसिव वाले को बेच दिया जाए. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो सॉल्व आउट किए, एंड देन वी फाउंड आउट दैट देयर डू एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. जो आर्बिट्रेज अगर करते रहो तो कहीं एक टाइम पे आके योर टोटल मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल. देन वी स्टडीड अबाउट द मार्केट इम्परफेक्शंस एंड इंसेंटिव इश्यूज, जिसके अंदर एजेंसी कॉस्ट, बैंकरप्सी कॉस्ट एंड फ्यू मोर थिंग्स. वी हैव लुक्ड एट फ्यू मोर थिंग्स. देन वी हैव लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ द टैक्सेस के टैक्सेस का इफेक्ट ऑन योर इनकम क्या है, और कितना ज्यादा टैक्स आपके जो है इनके कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस इनके ओवरऑल जो अर्निंग्स हैं, ओवरऑल अर्निंग्स को वो किस तरीके से वो मैनेज करते हैं. सो वी आल्सो लुक्ड एट द इफेक्ट्स ऑफ द टैक्सेस एज वेल. देन वी फाउंड आउट अबाउट फाइनेंशियल सिग्नलिंग, और फाइनेंशियल सिग्नलिंग वाज द लास्ट टॉपिक. In looking at the information asymmetry and the better information to be provided to the people who are really into the investment of the company, and they are looking into the capital structure of the organization. Now that was all about your today's lecture of capital structure. This marked the end of your capital structure or the determination of capital structure chapter. We'll be moving on to another chapter of dividend policy, or I think there is another more chapter of investment. We'll be moving on to that chapter in our next lecture. Hope to see you then.